Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today, again, we are moving towards a new chapter. Okay. Since I have finished the earlier chapter, that is nationalism. So today I have decided to take a new chapter today. Okay. So let's start with a new chapter. So see here, I have written down here chapter 7, and the name of the chapter is federalism. The earlier chapter that I have done, that is also chapter 7. And if you know it from the book, there are two books. Okay, I have told you already. So this chapter, federalism, deals from the first book, that is Indian Constitution at Work. And the other day that I have done the video from chapter 7, nationalism, that is from chapter 7, but book is political theory. Okay, so there is a similarity, chapter 7 and chapter 7. Okay, so don't be confused. Okay, so let's start with this chapter 7, federalism. Now, what is federalism? This may be new for you. Maybe you have heard very not earlier. Maybe you have heard this subject. Maybe new, almost new for you. Okay, federalism. So it's very easy to understand. Hope you will understand this video also. Okay, so let's start the lecture. See here, federalism is taken from a term federation. Okay, there are three words which comes in synonymous terms. Synonymous का मतलब हो गया जो तीन वर्ड है बट उसका मीनिंग जो है वो एक ही जगह पे आके रुकता है. ओके, तो मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे. ये देखो, फेडरल, फेडरेशन एंड फेडरलिज्म. ठीक है, सो दीज थ्री वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग. ठीक है, तो मैं ये एक शब्द से लेती हूँ, फेडरेशन. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फेडोस. ओके, फेडोस मीनिंग ट्रीटी और एग्रीमेंट. फेडोस मीनिंग ट्रीटी और एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट करना या फिर एक ट्रीटी या डॉक्यूमेंट बनाना या फिर साइन करना. बिटवीन हुम, साइन बाय डिफरेंट स्टेट्स और यूनिट्स. ओके, तो वो साइन करके व्हाट दे विल डू, दे विल फॉर्म ए यूनियन. दे विल फॉर्म ए union. Okay, so federation means a treaty or an agreement signed by different states of that particular country. Okay, or units of that particular country. Units of state का माने एक ही हो गया full science में. तो signed by different states and they all decide to join up in one governmental system or one union government. That is, I've written down union. ठीक है, so they comprise of together, they come together and join up and form into under the wings of the under the head of one governmental system. और they will vary, उनका अपना different states will be there and उनका सबका एक जगह पे आके रुकेगा. उनका जो हेड है जो या फिर उसका जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ना एक सिस्टम, तो उसको बोलते हैं यूनियन. ठीक है, अच्छा, तो ये जो चीज है फेडरेशन. ओके, बिकॉज अर्लियर टाइम जब बहुत सारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारा कंट्री दे वेर अंडर किंग्स, रूल बाय क्वींस. बहुत सारा इंडिया में भी था ये. आफ्टरवर्ड्स व्हेन मेनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट, they all have decided to join up into one central government or one union government. Okay, तो बाद बाकी जो स्टेट है वो क्या करेगा? So all these states were made to come to an agreement and they all come to an agreement and joined up the union government or the central government. ठीक है, और भी डेफिनेशन को मैं थोड़ा समझ बोलती हूँ. K.C. Very, one of the person, one of the writer who has investigated much about this federal system or the federalism system in any country.
ओके उन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, केसी वेरी। सो ही हैज गिवन एन वन डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा, फेडरल इन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल गवर्नमेंट में देयर आर पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके फेडरल कंट्री में देयर आर पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर डिवाइडेड इनटू और बिटवीन government for whole country, government for the whole country and government for parts of the country which are independent within itself। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंटल सिस्टम जो है इट इज डिवाइडेड बिटवीन हुम, बिटवीन होल कंट्री। होल कंट्री यहाँ पे जो आ गया इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। ओके और गवर्नमेंट फॉर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट। ओके तो डिफरेंट स्टेट में जब पावर जो डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे एक्सरसाइज देयर पावर विद इन इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ठीक है तो यहाँ पे मैं और चीज देखती हूँ, जैसे कि देखो इंडियन स्ट्रक्चर, इंडियन फेडरल सिस्टम। ओके सो इंडियन फेडरल सिस्टम में यहाँ पे आप देखो दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके एंड these are all state government etc etc। ओके सो ये है कि the whole governmental system is divided into central government and various state government। ये जो सिस्टम जो डिवाइड होता है इसको बोलते हैं फेडरेशन, फेडरलिज्म और फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ए डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठते हैं लोग, ओके दे डिसाइड पावर्स देयर, और एक पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी होता है, ठीक है जो न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग, एंड different states are there which have their own regional political parties and here they powers are divided। ठीक है so powers are divided between central government and state governments, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है अच्छा अभी इसमें देखो in this federal system there are some features are there in this federal system। क्या है features? number one dual polity। now what is dual polity? dual polity का मतलब हो गया यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे two sets of government। ओके यहाँ पे क्या हो गया two sets of government। मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब हो गया टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर्स आर स्टेट गवर्नमेंट। तो सो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है नेक्स्ट वाला देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन ए फेडरल कंट्री देयर शुड बी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी फेडरल कंट्री में आप जाओगे किसी भी, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑल आर फेडरल कंट्रीज। तो आप जिस भी फेडरल कंट्री में जाओगे आपको मिलेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कंट्री फॉलोज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखा जितना भी कुछ होता है कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, रेगुलेशन, आइडियल्स, एम्स, एस्पिरेशन जो भी है एवरीथिंग इज रिटन डाउन इन ए बुक, उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है तो फेडरल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखो आप टू आइडेंटिटीज। देयर आर टू आइडेंटिटीज। ठीक है जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ अपना आइडेंटिटी, ठीक है तो अपना आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन इज लाइक आई बिलोंग टू इंडिया ना, आई बिलोंग टू इंडिया, दिस इज सेंट्रल
गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देन आई बिलोंग टू आसाम, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन हो गया। माई सेल्फ, आई एम इंडियन, आई हैव द पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे वो भी फॉलो करना है बिकॉज आई लिव इन इंडिया। एंड आई ऑल्सो लिव इन आसाम, तो आई ऑल्सो हैव अनदर टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट इज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, उसका भी मुझे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। सो आई माई होम इज इन आसाम बट आई बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। तो 2 आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, डिविजन ऑफ पावर्स। Division of powers is same thing like dual polity. There are division of powers between the central government and state government, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अगर हम गवर्नमेंटल सिस्टम में जाएंगे, अगर हम जैसे कि हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम में जाएंगे, वहां पे हमें टॉप में कौन मिलेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट में आएंगे तो हमें कौन मिलेगा? गवर्नर, प्रेसिडेंट, गवर्नर। यहाँ पे हमें मिलेगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कौन मिलेगा? चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे और आएंगे हमें कौन मिलेगा कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे आएंगे हमें कौन मिलेगा? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, दैट्स हाउ दे वेरी। यहाँ पे है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, और यहाँ पे किसको क्या मिलेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर हम दूसरे नाम से बोलते हैं विधान सभा। ओके, सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ डिविजन्स, 2 डिविजन है पूरा पूरी। ओके, पूरा पूरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिटिंग इन पार्लियामेंट मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री, प्लानिंग फॉर द कंट्री। एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो दे आर सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर with his state council of ministers making plans and rules and regulations for the state। तो हम जो सिटीजन्स हैं, हमें 2 मानना पड़ता है, 1 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो डुअल ना, डबल डबल होता है इसको। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, इन ए फेडरल कंट्री देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो सिस्टम, जो हमने ऑलरेडी जुडिशरी पढ़ लिया ना, अगर आपको याद है उसमें तो क्या था? देयर आर, जैसे कि सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नीचे में जो स्टेट में मिलता है, उसके बाद स्टेट में हाईएस्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। ओके, तो उसके बाद अगर हम जाएंगे उसके ऊपर में क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होता है? इट इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट बिलोंग टू द state government. So there is an independent judicial system, but ultimate power is rested on the Supreme Court. जो decision होता है ना, ultimate decision is rested on the Supreme Court. So in a federal country there is an independent judiciary. ठीक है। Next, bicameral legislature. What is bicameral legislature? There are 2 types of legislature. Legislature मतलब क्या? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का दूसरा नाम है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर 2 तरह का होता है, 1 इज बाइकैमरल, 2 हाउस, एंड 1 इज यूनिकैमरल, 1 हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यहाँ पे क्या है हमारा? बाइकैमरल में देयर आर 2 हाउस ना, 2 हाउस, 1 इज लोकसभा एंड अदर 1 इज Rajya Sabha. Okay, I written down simply. So there are 2 house. 1 is Lok Sabha, lower house. 1 is Rajya Sabha, upper house. So in a federal system or federal country, there are 2 house which is called bicameralism या फिर bicameral legislature. Just like India, upper house and lower house. आप किसी भी कंट्री में जाओगे आपको 2 हाउस मिलेगा, upper house and लोअर हाउस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डुअल सिटीजनशिप। इन ए फेडरल कंट्री वी हैव डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो हमने सिटीजनशिप ऑलरेडी कर लिया ना, तो आपको पता है थोड़ा सा सिटीजनशिप क्या है। तो सिटीजनशिप मीन्स जो हमें नागरिकता मिलता है, हमारा जो पहचान मिलता है ना, वही है। ओके, सिटीजनशिप आर ऑफ 2
टाइप्स इन ए फेडरल कंट्री। जैसे कि इंडिया में एक्चुअली ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं होता है, ओके, दैट्स व्हाई ये हम लोग इशू बाद में करेंगे। अच्छा, मैं अमेरिका का एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे अमेरिका इज ए फेडरल कंट्री, तो वहाँ पे जो ड्यूअल सिटीजनशिप जो फॉलो होता है, जैसे कि एक इंसान अगर न्यूयॉर्क में उसका घर है, तो ही इज ए सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क एंड ऑल्सो ही इज ए सिटीजन ऑफ अमेरिका, द कंट्री अमेरिका। ओके, तो ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ हिज कंट्री प्लस ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ हिज स्टेट, ऑफ हिज स्टेट टू which और अंडर which that country comes। ओके, जिस कंट्री के अंदर में वो स्टेट आता है उसका भी वो सिटीजन है और उस कंट्री का भी वो सिटीजन है। सो देर आर ड्यूअल टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। ओके, सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ए फेडरल सिस्टम और फेडरलिज्म जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फिर मैं बोलती हूँ थोड़ा सा, फेडरलिज्म मतलब क्या? फेडरल, फेडरेशन, फेडरलिज्म का शब्द जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या है? दैट इट इज ए मीनिंग कॉल्ड ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन बाय डिफरेंट स्टेट्स और यूनिट्स टू फॉर्म एन यूनियन गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एंड पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। टू आइडेंटिफिकेशन, डुअल पॉलिटी, ओके, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ पे? बाइकैमरल लेजिस्लेचर और डुअल citizenship. In any country, federal country you go, you will find these common features existing in a federal country. Okay, तो फेडरल कंट्री का सिंपल मीनिंग से हम लोग अगर बोलेंगे, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो फेडरलिज्म मीन्स जो है डिविजन ऑफ पावर और डुअल पॉलिटी, दैट इज पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में powers are divided between the central government and between the state government. Okay, so this is the starting area of federation or federalism, ab jo bhi bolo isko. Okay, so with this we will continue in the other areas in the next video. Okay, thank you students.